Can you see my screen, Bacho? Is it Yes, Yes, visible? Yes, no. yes, ma'am. William. Yes. Oh shit, one minute. By mistake. I will share one. Okay. Hmm. सही है. Concepts we have learned from the so first we have discussed the sequences and series वाला part है ना. और फिर हमने लेटर सीक्वेंसेस भी किया है. और फिर हम क्या किया है, एनालॉजीज किया है. और हम फैमिली ब्लड रिलेशंस किया है. और फिर हम वो रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग है ना, वो भी हम किया है. और फिर हम क्या क्या किया. दीज आर ए न्यू टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. like in exam there is always a possibility they can ask a new question. Okay, new questions भी आ सकते हैं. Then you need to just think about it like how can I solve this problem, how can I tackle this problem. तो तो वह क्या पूछ रहे हैं, वो सब आप थिंक करना चाहिए. और फिर हम नॉन वर्बल रीजनिंग भी करे थे ना. like so many we have done in non-verbal reasoning, like images में matrix matrix questions we have done. And still series questions also we have done. और फिर assumptions questions are there, we have done that one also. Conclusion, so we will, so our final idea and goal is we will recap all the concepts. But just with these questions we can't, maybe if you made a notes then that's better to recap. Okay. Okay, चलो हम start करते हैं class. So now what I will do is first I will give you 3 minutes. Okay, so wait, you will be having 30 minutes, right? 30 minutes होते हैं और 30 questions होते हैं. तो 30 questions. So आप एक क्वेश्चन को 1 minute और else max 1.5 minutes ही देना चाहिए. Otherwise you can't attempt more questions, है ना. So what we will do is since we are in an online class, so I will give you here 2 minutes of time. You should solve the question, and if you did not get, it's fine. In the final exam it will be somewhat easier. Okay, I will give you 2 minutes for every question, and then I will discuss the solution. Okay, fine. Okay, chalo. First question, like just tell the options. Okay, ये सीक्वेंस हमें दिया है और फिर हम नेक्स्ट नंबर को फाइंड करना है. ओके, सो पहला 1 minute थिंक करो. मैं ओके, सो फर्स्ट 30 seconds यू थिंक ऑफ इट. फर्स्ट रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, नोट डाउन इट, एंड देन think about it carefully. Okay,
1 minute. Think I should better keep like this. हाँ. Okay. कितने बच्चे हैं? Okay. So 6 members are there. Okay. No problem. But you're all are good students, Anushka and Darshana, Om, Komal, Sangram, Samskriti. I know you can do well, but just be cool to like in day after tomorrow's exam, okay? पहला क्वेश्चन किसी को आया है क्या? Any idea you got? मैम मुझे आई थिंक लग रहा है सी Okay, 445 445. okay. और फिर others, संग्राम, any idea बेटा? ओम, Om, you are which class? Om Kasar. 9th standard मैम. अच्छा 9th standard. Okay. मैम और एक ओम है वो 11th स्टैंडर्ड में आई थिंक. अच्छा अच्छा. Okay, that's why. Yeah. So I remember Om name very frequently because there's one Om in 9th and also in 11th, right? Okay. और फिर मैम किसी को ओम के आया साथ है क्या? अनुष्का नो मैम. तो बोल रही हूँ. नो मैम. ओके ओके. संग्राम, एनी आइडिया बेटा? नो मैम. Okay, okay, no problem. So, okay, चलो we will discuss this one. और फिर हम अनुष्का से भी पूछ लेते हैं how did she solve this one, okay? So first I will explain this one. तो पहला हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये गुना हो रहा है ना, सो पिछले नंबर से कंपेयर करो पहले सीक्वेंस में. ये देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है पर हमें किस नंबर से नहीं पता है ना. सो इफ यू सी दिस वन, 6 into 3, 6 into 3 is 18, right? 6 into 3 is 18. और 18 plus 3 क्या है? 21. So just I have observed that like the sequence is somewhat multiplying, so बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना सीक्वेंस. सो देयर शुड बी सम मल्टीप्लिकेशन थिंग. और फिर ये देखो 1 से 2 कैसा जा सकते हैं? 1 into 2 plus 1 है ना. और फिर 2 to 6 से हम कैसे पहुंच सकते हैं? तो एक मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन होना चाहिए ना. सो 2 into 2 करती हूँ मैं पहले और फिर 2 गिनती हूँ है ना. 2 plus 2 6. तो इधर क्या रूल लग रहा है? और फिर ये देखो 21 से 88 कैसे जा रहे हैं? +4. तो हमें क्या मिलेगा? 4 8 और फिर +4 तो 88. सही है. तो नेक्स्ट नंबर, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? 88 into 5 +5 है ना. तो यस ये मैम. क्या हो जाएगा? 440 +5. यस मैम. वेरी गुड अनुष्का, थैंक यू मैम. very good. Okay, now we will hear from Anushka. Same method or else any different method, beta? मैम ऐसे ही किया था. Okay.
ओके देन ओके गुड. चलो, सो सबको समझ में आया ना? किसी को कोई डाउट है? नो मैम. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करो. अगर आपको ऐसे अल्फाबेट प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत आ रहा है तो देन यू राइट द नंबर्स लाइक अल्फाबेट्स पूरे लिखो और फिर उनके नीचे में नंबर्स लिखो और फिर देखो like convert the alphabets problem to a number problem. Maybe that would be somewhat easier. But if you're comfortable with normal alphabets, that is completely fine. Option number A, ma'am. Option number A. Yeah, good. Who is this? Sanskriti, ma'am. Sanskriti. Okay, good. Option number A, Sanskriti. ma'am. Option number A. Yeah, A is correct. Good. तो इधर क्या हो रहा है? जस्ट रिवर्स सीक्वेंस में चल रहा है ना ये सब. सी डी ई, इधर हमें नहीं पता. आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू है, ये सारे अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में ही चल रहा है. तो सी डी ई के बाद क्या आएगा? लाइक इधर ट्रायड्स में डिवाइड हो रहा है ना. लाइक ये सारे एक ट्रायड के जैसा बांध रहे हैं. तो सी डी ई और फिर एफ जी एच रिवर्स से अगर आप देख ले तो. Otherwise, you can do this in one more way. Like you can write all the alphabets here, A, B, C, D, E, F, G, H और फिर Z तक लिखे और फिर उनके नीचे 1 2 3 4 लिखे और फिर ये which पोजीशन में आएगा. तो वेट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज ये 5 4 3 है ना, और फिर इधर 7 8 7 6, ये 11 10 9 और फिर ये 14 13 12. तो आप एक सीक्वेंस ऑब्जर्व कर सकते हैं ये नंबर्स में. तो आप नंबर्स में भी कन्वर्ट करते भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, दैट्स योर कंफर्ट कंप्लीटली. 17 16 15 समझ में आया ना? दो मेथड्स. पहले ये कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, वो हम ऑब्जर्व करे थे. और the second method is converting them into numbers ऐसा, and we observe that they are all are consecutive and decreasing. Okay, चलो third question. ये तो easy है, just common sense का question है ना. तो exercise is an activity है ना. Ma'am, Gym is a option D. place. Yeah, D is correct. Good. So exercise is an activity and gym is a place. Eating is also an activity. So generally like we will eat in our school and in our home, but let's see in the options. Okay, food is a thing, right? Not a place. And dieting is it is a principle, or you could say some method. Okay, and fitness is not really okay. Fitness is also not a place where you can eat. Okay, restaurant, like in restaurant you do eating, so restaurant is correct. So they can ask you some basic some common sense wala questions. Okay,
So this is a new type of problem. If you find such questions, don't panic. Just try to understand, okay, how they are asking. Once you all try, and then I will explain. किसी को कुछ समझ में आया क्या क्वेश्चन? Okay, चलो, I will explain this question. So what they are telling is, एक artificial language हमने frame किया है, जैसे कि like this is a word, like actual word is this one, okay, blue sky के coded word, okay, Mulokarn, something, okay, and this will correspond to this word, okay. In this new language, these are called as this, okay. This is the original language and this is the artificial language, ये सब. तो हम इसमें क्या करना चाहिए? इस दोनों वर्ड्स में क्या क्या कॉमन है? ओके, कुछ नहीं कॉमन है ना, पर ये दोनों कंपेयर करते हैं. Bicycle is common, right? In both the actual words, bicycle is common. और फिर वही एक कॉमन वर्ड यहाँ भी होना चाहिए. तो इन दोनों आर्टिफिशियल वर्ड्स में क्या क्या कॉमन है? कोई बता सकते हैं क्या? मैम ऐसा बताना है कि लेटर कॉमन है ऐसा? नहीं, पूरा वर्ड बताओ. लाइक इधर विल्को इज कॉमन, राइट? विल्को. तो हम क्या करते हैं ना, बाइसिकल इज, अनुष्का, डू यू वांट टू टेल? तो बाइसिकल विल करेस्पॉन्ड टू विल्को. तो what we have to do is basically we need to find what is common in both the words, okay. Bicycle is common here, and similarly they should be common in between these two words also. What is common? Wilco is common, है ना? Okay, so we found that bicycle corresponds to Wilco in this new language. ये न्यू लैंग्वेज में बाइसिकल को विल्को मान रहे हैं. तो द रिमेनिंग वर्ड व्हाट इज देयर हियर? रेस इज देयर, राइट? रेस को किससे करस्पॉन्ड करते हैं? तो फिर बाइसिकल रेस, विल्को स्पैडी. तो रेस हम स्पैडी को, 1 मिनट, या तो रेस को हम स्पैडी से करस्पॉन्ड कर रहे हैं. करस्पॉन्ड मतलब इक्विवेलेंट में भी इक्वल है दोनों, ओके. तो नाउ दे आर आस्किंग विच वर्ड मीन्स रेस कार. हमें रेस पता है पर फिर हमें कार नहीं पता है ना? तो हम इन सब ऑप्शंस में विच विल सूट दैट वी विल सेलेक्ट, ओके. तो रेस मीन्स स्पैडी, राइट? स्पैडी. तो इन सब में स्पैडी कहाँ कहाँ है? बी और डी में है ना? पर Yes, हमें ma'am. पता है कि विल्को इज बाइसिकल, पर ये कार है ना, तो विल्को इज रॉन्ग. तो ओलो इज समथिंग इज देयर, राइट? सो डी इज करेक्ट. समझ में आया? तो हम कैसा किया है, हम पहले ये ऑब्जर्व Yes, किया ma'am. था कि, या वेरी गुड. तो हम पहले ये ऑब्जर्व किया था कि व्हाट इज कॉमन, एंड वी
corresponded. Maybe we have marked the words, like we have did the matching type of thing, matching. जस्ट हम मैचिंग किया थे, तो फिर हमें बाइसिकल मतलब विल्कोम समझ गया, और फिर रेस मतलब स्पैडी समझ गया। तो हम रेस कार को किससे लीड करते हैं वो हमें पूछ रहे हैं। We will do one similar question now, maybe just to check whether you understood or not. 6 क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। तो हमें ये 3 क्लू दिए हैं, तो हम कॉमन वर्ड्स को मैप करना चाहिए। तो क्या क्या कॉमन है यहाँ, लाइक आर्टिफिशियल वर्ड्स, लाइक आर्टिफिशियल लैंग्वेज के वर्ड्स में भी कॉमन होना चाहिए, और रियल लैंग्वेज के वर्ड्स में भी कॉमन होने वाले शब्द को हम पकड़ना चाहिए। एंड देन वी हैव टू इक्वेट दोज बोथ। समझ गया ना लॉजिक? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अभी पूछ लेना। मयूर, तुझे कोई डाउट है क्या बेटा? मैम ऑप्शन डी। No. ओके ओके, ऑप्शन मैम ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन Ma'am, सी, ऑप्शन ए। ओके मैम चलो option C, सॉल्व ma'am. करते हैं। Option C. ओके ऑप्शन सी, ओके लेट्स गो, मैम ऑप्शन लेट्स सी। सी। ओके, Sangram is telling, okay, and so many are telling C, and A are also. Hello, Some are teacher. Option number C. Okay, Jagriti is also telling C. Let's see which is correct. Okay. So here are some words translated from an artificial language. Godabin. तो मैं पहले इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? किडनी इज कॉमन, राइट? तो इन दोनों में कॉमन डिम इज कॉमन। और वन थिंग टू नोट हियर, किडनी पहला आए है पर बिन तो सेकेंड आए है, like it came at the last, right? So there is no rule that तो किडनी वर्ड तो पहला आ रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल लैंग्वेज ऑल्सो वो पहला ही आना चाहिए कि कोई रूल नहीं है। वो लाइक बाद में भी आ सकता है। ओके, जस्ट ए स्मॉल पॉइंट इफ यू हैव एनी डाउट। तो किडनी मतलब बिम है, और फिर ये दोनों को हम कंपेयर करते हैं। अब बीन्स, इन दोनों में कॉमन क्या है? रोम्स, है ना? रोम्स मतलब बीन्स। तो हमें पूछ रहे हैं कि वैक्स स्टैचू का क्या है ना? तो वैक्स इज इधर, तो व्हाट इज द रिमाइनिंग वर्ड? बैको। बैको इज देयर, Yes. एंड स्टैचू मतलब ओके, स्टैचू हमें पता है क्या? ओके, हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। बैको इज नॉट देयर हियर, तो ये गलत है, तो ये गया है। और फिर बैको इज नॉट देयर हियर, बैको सिर्फ सी में ही है, तो सी इज ओनली द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड बच्चों, यू हैव अंडरस्टूड। तो ऐसे ही थोड़ा स्मॉल क्वेश्चंस दे कैन फ्रेम डिफरेंटली। Just you need to understand, okay, they have formed a new language, okay, and then you have to read the question carefully. Okay, chalo. हाँ, this question, yeah, 5th question. I will give somewhat more time for this, maybe take 3 minutes. Think about it carefully. मैम ऑप्शन नंबर 1। Wow, okay. Ma'am, option number 1. Ma'am, option number A. Okay. मैम ऑप्शन नंबर डी। Very good, ऑप्शन नंबर very good. Wow, okay, I did not expect. Very good, bachcha. Teacher, option number A. Yeah. How would anyone like to
explain how option number 1. मैम मैं करूँ क्या? Yeah. टीचर मैं जागृति बताऊं? Darshana asked first no beta, so let's give to Darshana. Okay, Jagruti? मैम हम फर्स्ट फिर- तीन में देखेंगे तो एक राउंड है और उसके बाजू में स्क्वायर जैसा बनाया हुआ है। हम्म। फिर सेकंड में देखेंगे राउंड है और उसके बाजू में सर्कल बनाए छोटे छोटे 2। हाँ, फिर सही है। उसके बाजू में ट्रायंगल बनाए है। हाँ, नीचे भी पहले ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर हाँ, सर्कल है और या उसके करेक्ट। नीचे सर्कल है, ट्रायंगल है, सर्कल, फिर ट्रायंगल स्क्वायर और आएगा। फिर स्क्वायर रहना चाहिए। ओके, वेरी गुड। तो 1 is correct. तो एवरीवन ऑब्जर्व दिस वन, ये साइड वाला पार्ट। सबको समझ में आया ना? तो फिर Yes, ma'am. स्क्वायर, सर्किल, ट्रायंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्किल, सर्किल, ट्रायंगल और फिर स्क्वायर आना चाहिए। Okay. चलो, गुड। 7 प्रॉब्लम को एक बार देखो। मैम ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 फिर से एक बार थिंक करो। मैम थिंक। ऑप्शन नंबर 3। Yeah, yes, 3 is correct. Anyone else कैसे आया? would like to explain? Mm-hmm. मैम कैसे आया वो ऑप्शन नंबर 3? तो इधर है ना, इसमें हम ये डिलीट कर रहे हैं, लाइक इनसाइड पार्ट्स ये है ना, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड पार्ट डिलीट करके ये फिगर हमको आया है ना? तो ऐसा है ना, बटरफ्लाई जैसा कुछ, ये इनसाइड पार्ट्स है ना? मैम वो जैसे हम मैथ में x निकालते हैं ना, तो ये उसी सम की तरह है। Okay, yeah, you can मैम think of ऑप्शन like नंबर that बी। also. Option number B. Option टीचर number, आई टेल ऑप्शन नंबर C। yeah, C is correct. तो like 1 minute, जो क्या है ना, एक बार मैं ये सब निकालती हूँ। कैन डिलीट, या हाँ, तो यह क्या है ना, ये सेकंड पार्ट है ना, ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट में ये बाग है ना? पर फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। और फिर यह भी, ये सेकंड पार्ट दिया है ना, दिस शुड बी ए पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट, पर फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम 1 को देखते हैं तो 1 में ये क्रॉस मार्क नहीं है ना, तो 1 इज रॉन्ग। और फिर 2 और इस सेकंड फिगर आर एग्जैक्टली द सेम, तो ये भी गलत हो गया। और फिर 3 और सो 3 में हम एक क्रॉस को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये क्रॉस मार्क, सो 3 इज करेक्ट। और फिर 4 में भी हम ये ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? जस्ट स्मॉल कैच। यस तो मैम। this second figure should be there in the first figure. यस मैम। Okay. ये देखो, assumptions questions, ये assumptions, किसी को याद है assumptions मतलब क्या है? assumption मतलब हम लाइक स्टेटमेंट को मीनिंग करने के लिए हम कुछ मान के चलते हैं। लाइक कुछ तो हम मान लेंगे और फिर हम और और फिर ही हमको वो स्टेटमेंट को एक मीनिंग आता है ना? और एल्स
a statement which should be necessarily true so that this statement is correct. तो अगर ये अच्छा okay, they are asking conclusions है ना, sorry, assumption is this one, sorry I got confused. तो conclusion मतलब like nothing, like just the statement, like if this statement is true then the conclusion must also be true. ये 100% ट्रू होना चाहिए, पार्शियली नहीं होना चाहिए, ये भी याद रख लो. 100% ट्रू होते only if it is 100% true then you should mark it. तो यह क्या, like what is there in this one? टोटल रन्स इज 200 और फिर 160 रन्स किए हैं स्पिनर्स ने, तो 160 by 200 into 100 80% है ना, ये सही है. Hello, ma'am. ओनली वन. क्या संग्राम, could you please repeat? Ma'am, option number D. Option number D. Neither one or Yes, two ma'am. follows. Yeah. Okay. 1 minute. In a one-day cricket match, total runs made by the team were 200. Okay. Out of this, 160 runs are made by the spinners. 80% of the team consists of. अच्छा, okay. ये भी गलत है ना. Okay. टीम में लोग होते हैं, रन्स नहीं है ना. तो टोटल रन्स वर 200 and the runs made by the spinners is 160. So 80% of the team consists of spinners is also wrong. 80% of the runs are made by the spinners, तो वो सही हो जाएगा, पर इधर तो 80% of team कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स, ये गलत है. और फिर ओपनिंग बैट्समैन और स्पिनर्स, ये कहा भी नहीं दिया है ना, सो ये भी गलत है. सबको समझ में आया? तो रन्स, लाइक टोटल रन्स आर 200, पर लाइक उनमें से 60 रन्स आर मेड बाय द स्पिनर्स. They are telling 80% of the team. Team मतलब members in the team, not the runs. So ये wrong है. और फिर opening batsman ये कहा भी नहीं कहा है. Okay. चलो हम assumptions questions में आया है. Statement एक बार बता देती हूँ. It is desirable to put the child in the school at the age of 5 or so. So why do parents want to keep the child in the age of 5? तो ऐसा करने के उद्देश्य क्या है? अगर आपको उद्देश्य समझ जाते हो तो आप assumption easy से ही like you can answer it easily. पर्पस समझ में आने चाहिए. Okay, चलो I will explain. So at that age the children reaches the appropriate level of development and is ready to learn. So since the statement talks of putting the child in the school at the age of 5, so that means that वो child is mentally prepared to learn at the age of 5, like he is developed, like वो child develop किया गया है so that वो learning stage में आ गया है ना. So this is so implicit मतलब क्या है कि
ये क्वेश्चन में ही इनकॉर्पोरेटेड है, लाइक क्वेश्चन से ही हम ये अजम्पशन कर सकते हैं, है ना? दैट्स व्हाट इम्प्लिसिट मीन्स. तो 1 is correct because like the parents want to put the children in the age of 5 in the school because they are mentally prepared at that age. So it is appropriate level of development is there, so they are able to learn. That's why the parents want to keep in the school, right? So 1 is correct. और फिर ये देखो, schools do not admit the children after 6 years of age. But nothing about the age of 6 or else more than 6 is not given in the question, right? It is desirable to put the child in the school at the age of 5. Only at the age of 5 they are telling. But about the age of 6 or else more than that, they are not telling anything. In the question, they did not mention anything about the age of 6 or after the age of 6. तो ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में क्लियरली नहीं दिया है, तो ये हम अजम्पशन नहीं मान सकते हैं. तो ओनली 1 इज करेक्ट. तो ऐसा कुछ एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लाइक यू माइट हैव कंफ्यूज लाइक वेदर बी इज करेक्ट और नॉट, राइट? तो इफ क्वेश्चन में से तुम डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हो लाइक दिस इज एन अजम्पशन, देन डू नॉट मार्क दैट वन. ओके, समझ में आया? और एनी डाउट Yes, तो ma'am. पूछ. ओके ओके, गुड. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. फैमिली रिलेशंस का प्रॉब्लम है. थिंक ऑफ इट. This is just an exercise for you to recollect all the concepts we have brushed through it. Okay. So I would suggest you everyone to like if you have prepared a notes, so just revise that one, or else uh, or else if you have phones, then you can search logical reasoning. Okay, logical reasoning. और फिर एक 10 questions कर ले. That's it. That will be okay, good enough. Maybe a 20 questions if max, and then you will be prepared. See, the main part is the time management. वो like that is more difficult actually. So आप in the small time you should be able to do 30 questions, no? 30 questions and 30 minutes. So time is big factor, but I will say accuracy beats time. Like accuracy beats speed. अगर तुम फास्ट सब गलत करे तो कुछ भी फायदा नहीं होता. Accuracy is first preference, then speed. Like I have seen so many students, like my friends who are very speed, but they don't get very good marks. Only the one with accuracy will get good marks. Okay, chalo. 10th question. Tanya is older than Eric. मतलब T is greater than E. और फिर Cliff is older than Tanya. C is greater than T. और फिर Eric is older than Cliff. E is greater than C. Okay. If the two statements are correct, मान लो ये दो statements true है, तो ये सब true है, तो फिर ये third statement सही है या गलत है, वो मैम वो गलत. हमसे पूछ या गलत है गलत है ना, तो B. फॉल्स आएगा. Similarly do 11th one.
हेलो टीचर। हाँ बोलो। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। Oh, I was not talking anything. Okay, चलो ये कर लेते हैं. All the tulips in Zoe's garden are white और फिर all pansies in Zoe's garden are yellow. तो ये क्या कह रहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स, ये पहला दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो मान लो ये दोनों करेक्ट है. Okay? और फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट या नहीं वो हम जज करना चाहिए विथ आवर लॉजिकल सेंसेस. All the flowers in Zoe's garden are either yellow or white. सही है ना? Because Zoe's garden में two types of flowers are there. यस Tulips मैम. and pansies. Yellow है और फिर white है. तो either और मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो true. चलो 12th को देखते हैं. P is brother of Q. Okay, once you try. I should give time for you. Okay. So first you try and then you tell one option. मैम ऑप्शन नंबर सी का और डी का मराठी हिंदी में अर्थ बताएंगे क्या प्लीज? अच्छा ओके. मराठी में तो I will हिंदी में try. बता दीजिए मैम. अंकुल. है वेट. अंकुल मतलब चाचा. अंकुल 1 minute I will. अगर लाइक किसी को पता है तो बोल लो लाइक मराठी में क्या कहते हैं. Wait, I will do Google search and tell you. हेलो मैम. हाँ बोलो बेटा. चलो मैम. First. अंकल मतलब No, काका. think about it because yeah, uncle मतलब काका. इसके see. Note it down. Uncle मतलब काका. काका नहीं तर मामा मैम. काका और else मामा. नहीं टीचर, सिर्फ काका. ओके सिर्फ काका. ओके सी संग्राम. सो ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस इज देयर. ब्रदर मतलब ब्लड रिलेशन ओनली. अगर ब्लड रिलेशन हो तो ब्रदर भाऊ मार्क मैम. करो. ब्रदर मतलब भाई. या भाई. भाई है ना. भाई या भाई टीचर. कजिन मतलब सी ब्रदर मतलब भाई. ब्लड रिलेशन शुड बी देयर. कजिन मतलब चुलत भाऊ. ब्लड रिलेशन नहीं हो लाइक दे आर नॉट टू सेम पेरेंट्स. अगर काका सेम बेटा. पेरेंट्स को चुचुरा भाई. वेट क्या 1 minute. 1 minute बच्चों. आई विल टेल द डिफरेंस. सी सेम पेरेंट्स मतलब ब्रदर्स और एल्स जस्ट कजिन्स. सेम पेरेंट्स. ओके तो ये क्या है ना, इस ऑनलाइन में ये पेंसिल से लिखने से कुछ दिक्कत आते हैं ना. तो कजिन मतलब डिफरेंट पेरेंट्स. तो नहीं टीचर, ये कजक मतलब कजिन मतलब चचेरा चुलत भाऊ. मैम उसे हिंदी यहाँ में पर चचेरा उनके पेरेंट्स. हाँ सही है या बट कजिन के पेरेंट्स और तुमका पेरेंट्स डिफरेंट है ना. लाइक हमारे कजिन भाई और मतलब काकाचा मुलगा. हाँ क्या चचेरा भाई. चचरा भाई. ओके कजिन मीन्स चचरा भाई. ओके चलो मतलब चलो अब चाचे का. देखते हैं. हेलो मैम मैम. ऑप्शन नंबर डी आएगा मुझे लगता है. Yeah, D is correct. Okay, I will tell you. So P is brother of Q. So what I will do is, अगर डॉटर हो तो मैं नीचे मार्क करती हूँ. अगर पेरेंट्स हो तो मैं ऊपर मार्क करती हूँ. Like that I will be solving the questions. Q is the mother of R है ना. तो Q मदर है R के. और फिर S is the husband of T. Wait. R is the daughter of S again. तो Q मदर है ना, तो Q इज फीमेल और फिर S इज मेल. अगेन S इज द हस्बैंड ऑफ T. अगेन T आ गया. ये S ने तो
सेकेंड मैरिज किया आई थिंक, है ना? दैट्स व्हाई. This is the husband of T. Okay. ये मेल है. अगेन T is female. अगेन T का एक सिस्टर है. वेट स्पीकर. ओके स्पीकर. स्पीकर मतलब मैं है ना? मैं हूँ. Okay. तो T is the sister of अगेन स्पीकर. तो स्पीकर को P कैसे रिलेट है? तो स्पीकर को ये क्या होगा? ब्रदर इन लॉ है ना? ब्रदर इन लॉ के वाइफ क्या होगा? सिस्टर. तो Q इज सिस्टर ऑफ द स्पीकर. Q इज सिस्टर ऑफ द स्पीकर और फिर Q का ब्रदर है ना? P इज द ब्रदर. तो ब्रदर का ओके सो सिस्टर का बाय क्या होगा? ब्रदर. ब्रदर ओनली. पर ये देखो. पर तो तो द मेन ट्विस्ट हियर इज, तो बाई का ये एक रिलेशन है ना? पर ये देखो, ये बाई और ये सिस्टर सेम पेरेंट्स के नहीं है ना? टी एंड स्पीकर आर लाइक दे हैव द सेम पेरेंट्स. पर स्पीकर और फिर पी को सेम पेरेंट्स नहीं है, तो दे आर जस्ट कजिन्स. चचेरा भाई. चचेरा भाई. ओके सो चचेरा भाई मीन्स कजिन है ना? है ना? Yes, ma'am. Yeah, so they are just cousins. Okay. Yeah. Does this still happen actually? Like second marriages? I don't know how they will manage. Like just with just with one wife, I think men will get frustrated. I don't know how did he get the second marriage again? I think वो सब पुराने दिनों में हो रहे थे, but I think now there's nothing like that. Okay, चलो 13 को देखते हैं. A is father of B. A लिखा. B is brother of C. Brother. और फिर C is mother of D. C mother of D. D is sister of E. और फिर he is the son of the speaker. क्या? He is the son of the speaker. अच्छा ओके. तो इधर स्पीकर है. तो C is mother और फिर स्पीकर का सन ही सी. दैट मीन्स दे सी एंड स्पीकर मस्ट हैव मैरिड, है ना? दे आर टेलिंग सी हियर डी सिस्टर ऑफ ई. सिस्टर मतलब तो ये दोनों भाई और बहन है ना? तो दे शुड बी हैविंग सेम पेरेंट्स. लाइक आई वुड बी टेलिंग लाइक रक्त संबंध. तो what they are asking, obvious A is related to D. Okay. Oh, just we have to do this one. That's it. Okay. तो it's easy, right? तो ये ग्रैंडफादर होते हैं because A is father. ग्रैंडसन, आई डोंट नो, ग्रैंड-डॉटर है ना? D A को ग्रैंड-डॉटर है और A D को ग्रैंडफादर है. सही है ना? Ma'am. Yes. ओके. ओके, ये आइडेंटिफाई करो. Just your observation skills matter here. Think. Ma'am, I think option C.
मैम ऑप्शन नंबर 4। सी टीचर Ma'am, yes, ma'am. Option number C. मैम ऑप्शन नंबर 4। एक बार ये देखो, सॉरी मैम, ऑप्शन नंबर डी। ये देखो एक बार, यहाँ कुछ कुछ ऐसा पार्ट है ना, स्मॉल पार्ट। यस मैम। यस मैम। अच्छा, ओके ओके, या डी इज करेक्ट। ओके, डी इज करेक्ट, या डी इज करेक्ट, बिकॉज आई वाज थिंकिंग दैट ओके, तो ऊपर में है तो डाउन साइड में भी होनी चाहिए, पर हम इधर देखते हैं तो ये कुछ भी नहीं है ना, तो लाइक दिस इज नॉट टचिंग द डाउन साइड वन, तो ये भी डाउन साइड नहीं टच करना चाहिए, तो ये गलत है और फिर ये भी गलत है, और फिर हमको 3 और 4 है। पर इफ वी सी दिस वन, दिस इज नॉट देयर, ये पार्ट नहीं है, तो ये पार्ट भी नहीं होना चाहिए, तो 4 इज करेक्ट। गुड, नाइस ऑब्जर्वेशन। ओके, 15, हम हमारा फेवरेट क्वेश्चन which we confuse, but okay, but let's try. Okay, it's just visualization type of question. तो पहले हम क्या करते हैं, अगर इसको हम टॉप मान लेते हैं तो यह, तो इसको हम टॉप मान लेते हैं। ओके, टॉप इज दिस वन, और फिर इसको हम ऐसा फोल्ड करना चाहिए 90 डिग्रीज, तो आप विजुअलाइज करना चाहिए यहाँ, तो I can't help. ओके, तो कैसा आएगा, ये ऐसा है, और फिर ये मैंने 90 डिग्रीज अंदर फोल्ड किया है, तो ऐसा बन जाएगा, प्लस ऐसा, Ma'am, और ma'am, फिर option number A. ऑप्शन नंबर ए। Yes, ma'am. लेट्स सी, ए, मैम ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ओके, I was thinking second was correct. Okay, let's see. तो मैं ऐसा फोल्ड किया, तो ये ऐसा बन गया, और फिर मैं इधर शेडेड भी है, मैं ऐसा फोल्ड करती हूँ 90 डिग्रीज, ये 90 है, तो कैसा बन, और मैं ये भी ऐसा फोल्ड कर लेती हूँ। वेट, अगेन आई विल ड्रॉ। ये इनसाइड चला जाती है, और फिर ये प्लस है, ये डॉट है, ऊपर में डॉट, और फिर डाउन में कुछ नहीं है, ब्लैंक, और फिर बैक में भी ब्लैंक है, लाइक द बैक साइड वाला फेस भी ब्लैंक ब्लैंक, और फिर यह तो ऐसा एक डायमंड है। ओके, तो क्या हो गया। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन। 1 minute, 1 minute, I'm thinking. Hey, ये देखो, you can't get the first option because ये डायमंड, और फिर ये है ना, ये छोटा सा डॉट है, और फिर ये सब ऐसा आ रहा है, लाइक दे आर, 1 minute, I would tell this one. डायमंड यहाँ है ना, और फिर ऊपर में ऐसा एक डॉट है, और फिर यहाँ शेडेड पार्ट है, कैसा, ऐसा। तो कैन यू सी दिस वन, डायमंड एंड दिस शेडेड पार्ट आर ऑपोजिट, तो ये नहीं आ सकता है ना, बिकॉज डायमंड एंड दिस शेडेड पार्ट आर बाजू में है, तो ये तो गलत हो गया। और फिर ये भी देख लो, सिमिलर है ना, तो ये भी गलत है। और फिर अब सोच लेना, 2 और 3 में भी एक होनी चाहिए। लाइक डिड यू अंडरस्टैंड दिस, लाइक दिस डायमंड पार्ट इज ऑपोजिट टू दिस वन,
शेडेड वाला. Option Option number number 3. 3. Okay, 1 minute. Let's check. एक डॉट है और फिर यह प्लस है ना. Like what we are facing is plus. Plus symbol is there in front. Okay. तो आप ऐसा टर्न करने तो टर्न. अच्छा, wait. Option number I 3. have drawn wrong. 1 minute. Wait, बच्चों. Option number Uh, 3. I think 2. Wait, I am thinking it is 2 because ये ऐसा है ना और फिर ये प्लस ऐसा और फिर यहाँ तो ब्लैंक है, ये ब्लैंक है और फिर यहाँ कैसा आ जाती है. ये ऐसा टर्न किया. ओके, तो हमको ऐसा मिलेगा. एक्चुअली द शेडेड पार्ट विल बी लाइक दिस. ये मत देखो, ये देखो. द शेडेड पार्ट विल बी लाइक दिस. अगर मैं इस क्यूब को 90 डिग्रीज ऐसा टर्न करती हूँ तो Option number B. या B is coming, right? I was thinking like B is correct. तो ऐसा प्लस इधर और फिर ये ऐसा. I think you all confused when I drawn this part reverse order, right? Just visualize, just try to visualize this one by folding this one. तो पहले हम इसको फिक्स किया है और फिर हम इन सब स्क्वायर्स को फोल्ड कर रहे हैं एक बार. I hope you got it. ओके, चलो. 3 क्यों नहीं आता है ना, बिकॉज व्हेन यू टर्न दिस वन लाइक ये है ना, ये ऐसा 90 डिग्रीज टर्न करो, then this shaded part will be in the top, right? Then what you will get, ये shaded part ऐसा और फिर ये डॉट वाला पार्ट हियर और फिर ये प्लस इधर. तो the sequence is different from here. Can you see? Plus should be in the dot place and dot should be in the plus place. Then 3 will come. So 3 is wrong. So 2 is correct. Okay, chalo. In exam, it is easy, then you solve, or else no need to stress out on this too much. एक क्वेश्चन आ सकती है or else nothing can come on this. Okay, so don't worry much about this. One more exercise for you guys. Try 16. मैम बोलो. इसका उत्तर 3. 3 है. ओके, लेट्स सी. तो पहले हम ओके सो तो पहले हम किसको टॉप फेस मान लेते हैं. okay, we will see this one as a top part because in 1 2 3 options this is the top part, right? So first I will fold like this. तो what is in there in my mind is, तो पहला ऐसा है ये शेडेड पार्ट और फिर मैं इसको फोल्ड किया, दैट मीन्स इट विल कम हियर और फिर ये डॉट पार्ट ऐसा है ना. ये
और फिर ये सब है मुझे 1 मिनट आई विल ड्रॉ ये है और फिर ये भी है सारे पार्ट को अब मैं फोल्ड करना चाहती हूँ 1 मिनट कुछ नहीं तो मैं ऐसा टर्न करती हूँ so I will turn this one like this तो what will I get ये ऊपर शेडेड पार्ट और फिर सामने एक डॉट और फिर ऐसा एक स्क्वायर और फिर पीछा एक नॉन शेडेड लाइक एक एम्प्टी पार्ट विल बी देयर पीछा और फिर डाउन साइड वी विल गेट अनदर शेडेड पार्ट कैन यू विजुअलाइज बेटा तो ये सब वी हैव फॉर्म्ड नाउ वी विल फोल्ड these also okay down we will get what okay down we will get ऐसा reverse shaded so what we can oh see we have already formed one दिख रहा है क्या ये ऊपर और फिर ये सामने और D. फिर ये लेफ्ट साइड क्या मैम ऑप्शन डी. ऑप्शन डी भी आ सकता है क्या ओके बट वी ऑलरेडी गॉट वन एंड तो टू तो नहीं आ सकता है बिकॉज ये दोनों शेडेड पार्ट तो ऑपोजिट ही होना चाहिए दोनों शेडेड पार्ट तो 2 इज रॉन्ग और फिर 3 भी रॉन्ग है और फिर 4 को एक बार देखना चाहिए अगर तो मैं क्या करती हूँ ये ऐसा 90 डिग्रीज रोटेट करती हूँ ओके तो डॉट ऊपर आ जाएगा डॉट ऊपर और फिर ये ऐसा ही होगा और फिर डाउन साइड है ना एक पार्ट वो ऊपर ऐसा आ जाएगा ओके और फिर बैक साइड भी ये पार्ट ऐसा हो जाएगा so see so in fourth figure the thing which is wrong is this vertical part is there so vertical shading is there but we should have horizontal shading हमें ऐसा होनी चाहिए इधर समझ गया यस मैम हॉरिजॉन्टल होता तो करेक्ट हो जाती पर वर्टिकल है ओके चल 17th वन ये तो हमारा फेवरेट पार्ट है ना जस्ट उल्टा कर देते लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट मिरर इमेज मतलब मिरर कहाँ रखते हैं इधर मैम ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 Option number 3. 3 इज करेक्ट या 3 इज करेक्ट तो सब देख सकते हो क्या सो फर्स्ट टी आनी चाहिए और फिर जे तो लास्ट आना चाहिए और फिर ये जे इन्वर्ट होना चाहिए लाइक मिरर इमेज तो 2 तो ओके 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 वेट 4 इज रॉन्ग और फिर 1 इज ऑल्सो रॉन्ग और फिर हम 2 और 3 के बीच में हम चेक करना है तो जी इधर इधर तो आप देखते हो तो सो जी शुड व्हाट वी कॉल दैट उल्टा होनी चाहिए पर यह तो सेम ही है तो ये रॉन्ग है 18th सिमिलर मिरर इमेज टेक द मिरर इमेज
ऑप्शन नंबर 3 मैम। Yes, ma'am. Option number 3. Then yes, teacher, option number 3. Yeah, 3 is correct. Good. Very good. Oh wow, we have completed the question paper. Still we are having 15 minutes, है ना? Yes, ma'am. Okay. So I will tell you some small tips. I think this will be the last class, right? And then you will directly going to the final exam. So what you have to do before the exam day? So what you should do is, first thing, you should sleep early. Okay. So आप तो generally when do you sleep? तो कितने बजे को आप सोते हैं जनरली? मैम 10 बजे। 10 बजे? मैम Okay. क्लास That's नंबर very good. 11। मैम मैम जब क्लास 11 खत्म बजे। होती है तब 5-10 मिनट में मैं सो जाता हूँ क्लास खत्म होने के बाद। वाह, अच्छा, ओह मैम वाह, 10 that's very good actually. 11। 10. ओ आप सब 10 तो मैम बहुत 10। अच्छे बच्चे हो. Okay, then I मैम don't need मैं to अगर say आपको this one, I think. Yeah, you all are very good kids, right? So I don't need to tell anything, I think. Okay, so sleep early, but try to maintain 7 to 8 hours of sleep before going to exam. 7 to 8 hours of sleep तो आप maintain करनी ही चाहिए. अगर नहीं करे तो आपका माइंड सही से फंक्शन नहीं कर सकता. और फिर एक वाटर बॉटल भी लेकर जाओ एग्जाम को. अगर आप किसी भी एक न्यू क्वेश्चन को एनकाउंटर करे तो एग्जाम में, तो पैनिक मत होना. डोंट पैनिक. यस मैम। Like, okay, you don't go to exam center, right? Okay, you will write the exam at home only, right? Okay, home में Yes, ही ma'am. you can write exam. So will you on your cameras? Like like when you're writing exam in your phone, then will you on your cameras and then you will write, or else how you will write? Yes, यस मैम। मैम You will on your कैमरा cameras, ऑन ही है ना? रहता है। Cam कैमरा on ऑन हो जाता है तो you can't copy, है ना? Yes, अगर मैम। कैमरा ऑन होने के बाद मान भी लाई ना तो वहाँ पे आता है रेड अक्षर में लिखा हुआ। रेड साइन में वो इंस्ट्रक्शंस बताते हैं, मतलब हमने Yeah. हिला तो So भी. you should not. या अगर आप हिला तो भी तो something can happen. Okay, चलो. But whatever the questions you get, do it. And if you don't get the questions, so the next more important thing is, don't keep too much of time on one question. Okay, तो ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन पर ही आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है. और फिर डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए. लाइक मेक श्योर दैट योर सराउंडिंग्स इज नॉट कॉजिंग डिस्टरबेंसेस. अगर लाइक जस्ट आप अपने पेरेंट्स को एक बार बता दीजिए, like now we are writing exam, so please don't do any noise, please, like that. So set a calm place for your exam. Okay, and whatever you need, like your snacks or else your water bottles, get and take them and sit in a place and write the exam. और फिर क्या क्या होते हैं एग्जाम में. And still keep proper time for logical reasoning, हाँ. Okay, keep proper time. अगर आप फर्स्ट मैथ्स होता है ना, तो फिर लॉजिकल रीजनिंग नेक्स्ट आते हैं, तो आप सारे टाइम मैथ्स पर ही स्पेंड करें तो लॉजिकल रीजनिंग को टाइम ही नहीं मिलेगा. तो हाउ विल यू स्कोर देन? तो प्रॉपर नहीं मैम टाइम भी देना चाहिए. मैम मैं क्या क्या करती हूँ जिस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता ना फिर आगे बढ़ जाती हूँ
और बाद में yeah, उसको yeah, solve that's करती है। very important. Yeah. So what Darshana is doing is also very important. So अगर आप एक क्वेश्चन को like if you don't get a question in 1 minute or else 1.5 minute, then you just leave it, है ना? तो वो वही ही छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहिए. अगर आपको लास्ट में टाइम मिला हो तो अगेन यू शुड कम टू दैट क्वेश्चन. ओके, दैट इज ए स्ट्रेटजी. तो वो हम क्या कहते हैं ना, राउंड 1 और राउंड 2 कहते हैं हम तो लाइक वी हैव डन इन जेई मेंस एक्चुअली दैट थिंग. तो पहला हम राउंड 1 कर देते हैं. like each क्वेश्चन को we will devote 1 minute of time. like I'm telling in your case, अगर हमको ये क्वेश्चन नहीं आते तो देन वी डोंट पैनिक. ओके चलो ये तो हमें नहीं आता, पर हमें 29 क्वेश्चंस है ना. like we have having the remaining questions. Okay, so let's do those remaining 20 questions and then we will come to this question. तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते तो वही छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन को जाके और फिर एवरी क्वेश्चन को ट्राई करके आपको कुछ टाइम मिला हो तो लाइक then you should come back to this tough questions which you did not get. समझ में आ रही है ना? Yes, राउंड 1 तो राउंड 2 जैसा आप करना चाहिए. Yes, ma'am. And this will be useful for your JEE advanced and mains also. like if you know JEE advanced, like मैं JEE advanced और JEE mains दिया के मैं IIT बॉम्बे में हूँ. so JEE advanced और JEE mains तो बच्चे तो इसके लिए बहुत अर्ली से ही प्रिपेयर करते हैं. लाइक जैसे कि 9th से और फिर 10th से जेईई मेंस और जेईई एडवांस. तो यह भी सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं बच्चे. सो मैम जेई एग्जाम क्या होती है? जेईई एग्जाम एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, नेशनल लेवल के ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. जेईई मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम. तो वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए लाइक दे विल राइट. ओके, तो फाइनली वी विल गेट एडमिशंस इनटू सम इंजीनियरिंग मैम कॉलेजेस. नीट लाइक मैं अब नीट तो मेडिकल कॉलेजेस में हम जा सकते हैं. नीट से हम मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं और जेईई से हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हम जा सकते हैं. ओके, इंजीनियरिंग मतलब लाइक तुम्हें पता होगा ना, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर Yes, आप ma'am. सुना होगा. डॉक्टर बनना मैम चाहिए आप तो कौन सा इंजीनियरिंग कर रहे हैं? मैं सीएससी से हूँ. मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रही हूँ. तो मैं अब मेरी फर्स्ट ईयर में हूँ. मैं सीएससी तो मैं आईआईटी बॉम्बे सीएससी में हूँ. मैं सीएससी डिपार्टमेंट से हूँ, आईआईटी बॉम्बे. तो फर्स्ट, so this was the first exam which we will give. अगर यह क्वालिफाई हो जाते तो हम जेईई एडवांस लिख सकते हैं. so I gave JEE mains and then I gave JEE advanced and then I came to IIT Bombay. For the JEE mains I think 10 lakh students will give. 10 lakh बच्चे ओवरऑल इंडिया में देते हैं, पर जेईई एडवांस में ओनली 1 लाख ही जाते हैं. 1 लाख, अच्छा सॉरी 1 लाख. और फिर 1 लाख से सिर्फ आई थिंक मे बी 20,000, आई थिंक 20 to 10,000, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मे बी 20K will get into IITs और या IITs में जा सकते हैं. IIT एक वेरी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है इंडिया में. तो like if you get into IIT then your future will be very bright. पर ये लोधा है ना, like
लाइक आपका लाइक क्या होते हैं ना, लाइक इन आईआईटीज में लाइक फीस भी बहुत ज्यादा होते हैं। लाइक हमारा फीस तो 1.5 लाख, आई थिंक 1.5 लाख just for 6 months. तो फीस इज वेरी हाई, राइट? फीस तो बहुत लाइक बहुत ज्यादा है, पर बैंक तो इजीली लोन देते हैं आईआईटीएंस को। तो एंड ऑल्सो देर विल बी some scholarships also. So don't think this one. Maybe 80,000 you can think of. 80,000 हो सकते हैं, 80,000 maybe. But what you are writing now, right? Lodha Genius Scholarship is there, right? If you can clear this one, then Lodha, like Lodha is one institution and they will provide free education for you, I think, till college. Like A भी एक good college है. So what they will do is, like, if you can get good marks in this exam which you are writing day after tomorrow, then they will provide you free education for, like, अगर आप 7th में हो, अगर आप 9th में हो, तो 9th से 12th तक, और फिर 12th से कॉलेज 4 years होता है, वो सब यही, like they will only take after this all, like your कॉलेज का फीस और फिर मिस का बिल, like I think so they will give you a scholarship which is very good. So आप ट्राई करें आपका मैक्सिमम, so that you get the scholarship. Okay, that should be your motivation. So you will be getting scholarship if you can score well. तो आपको अगर मैम मेरी talented है तो you can get a scholarship. Yeah, you want to tell something? हाँ दर्शना मैम बोलो बेटा। 7 तारीख को ना मेरी 2 एग्जाम है। 7 तारीख को? अच्छा, हाँ, क्या कॉलेजशिप के एग्जाम्स दिन। है? मैम मैं स्कूल में एग्जाम के लिए बैठी हूँ ना, हिंदी की एग्जाम है, वो भी है और कॉलेजशिप की भी है। अच्छा, ओके ओके। तो वन मैम सी, लाइक तो मैं क्या कहती हूँ ना, हिंदी एग्जाम वो सब मैटर नहीं करता है, लाइक लाइक डोंट टेल टू योर हिंदी यस मैम, मैम, बट इसीलिए मैं ना ज्यादा लोधा जीनियस स्कॉलरशिप में ही ध्यान दे रही हूँ। yeah, because I don't know, because I do have crossed your level, right? Like I am, see, you are just 7th, right? 7th or 9th or 10th. I have just completed 12th class, that's it. 12th class को complete किया है और फिर मैं college enter करी है ना, so I know that हिंदी और फिर ये तेलुगु, wait, like Sanskrit, these all are there, right? Like they will be no use after, like uh, like when you enter the college, you know. So try to give maximum time on scholarship. So focus on the scholarship exam only, because this will be very useful to your life, है ना? यस मैम, मैं अगर इसी पे ही एक ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। या तो अगर एक हिंदी एग्जाम में अगर आपको थोड़ी कम मार्क्स आए तो लाइक 2 और 3 मार्क्स छूट गई तो कुछ नहीं होगा। But if you get the scholarship, then your lives will change, right? It will be very good, and your parents will be very happy. They will be very proud of you, ना? वो सब सोचो और फिर तो ज्यादा टेंशन मत लो। Just be cool, relax, and just give your best, okay? यस We have मैम। done everything. We have done everything. Like we have done enough practice also. So be confident. We can do better. Okay, चलो बच्चों, that's it from my side. मैम
हाँ आप बोलो। थोड़ा सा हार्ड हार्ड जो क्वेश्चन है ना वो बना के हमारे ग्रुप में डाल देंगे क्या प्लीज, फिर हमारी प्रैक्टिस हो जाएंगी कल। अच्छा ओके। पर ज्यादा न्यू क्वेश्चंस करने से लाइक अगेन यू विल गेट समवट टेंस्ड राइट। पर मैं डाल देती हूँ लाइक 15 क्वेश्चंस आई विल गिव ओके 15 ओके मैम, Okay, थैंक teacher. यू। on somewhat Okay, tough ma'am. questions, maybe some tougher side, tough to medium side okay. Again all बच्चों will लाइक अगर सब डर जाते तो वो सही नहीं है ना। लाइक एग्जाम इज गोइंग टू बी इजी, एग्जाम विल बी इजियर बट द थिंग इज 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस करनी है ना, वो ज्यादा Yes, ma'am. मैटर करती है। पर फिर मैं दूंगा 30 15 टफ क्वेश्चंस so that your muscle memory like so your brain muscle will get stronger okay चलो ओके मैम, ओके चलो बाय बाय बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम यू कैन डू वेल जस्ट बी कूल Thank you, ma'am. ओके या ओके ओके मैम, चलो थैंक बाय यू। बाय Thank you, ma'am. Bye. Bye, Ma'am. बाय teacher. मैम। Good night. Bye, ma'am. Thank you. Mansi Patil do you want to tell something beta? यस मैम। या मैम क्या एग्जाम बोलो में बेटा 30 क्वेश्चन होंगे? wait I will tell Please. you so you will be having two parts है ना, two parts you will be having, one is maths का part and फिर something I don't know what you will be having. One part is you will be having 1 hour time I think, in that you will be having normal maths का और फिर logical reasoning भी होता है, like you will be having one more class right, something maths का related. ओह ओके ओके मैम। Yeah, so 30 questions of that normal maths और फिर 30 questions of this logical reasoning. ओके मैम। Okay बेटा all the best. Good night. मैम गुड नाइट दूसरी मैम। क्लास है क्या? हाँ क्या दूसरी क्लास है क्या? दूसरी क्लास नहीं है, अब मैं फ्री हो गई That's it. Okay, teacher. Bye, हाँ ma'am. okay. चलो बाय बाय बच्चों, Bye, ma'am. Good night. गुड नाइट। Thank you, ma'am. वेलकम।